Hi everyone, welcome to Humans of Politics, where we delve deeper into the human side of politicians. I am Shrishti from Indian School of Democracy. We are a non-partisan organization focused on redefining leadership. And today with us, we have Muzammil Kazi from Shopian, Kashmir. He was a part of Democracy Express 2023. How are you, Kazi? Uh, Thank you for having me. I'm good. It's great. Welcome, Ghazi. I just got to know that you are currently in college. You're doing your LLM. Yes. Um, how does somebody so young who's supposed to enjoy college life, go out Yes. with friends, do other things, focus on their career, how does somebody who's 26 decide to join politics? Thank you for having me here. It was not a single event that Yeah. motivated me to join politics. Rather, it was a chain or series of events that took place during college life. Being from a different place where our problems, our issues are different, and in a larger context as well. So in my college days there were a lot of issues that were happening to the students, and where institutions were failing to address those issues, and the people in power neglected those issues. So I thought, why not we? If we can't speak for ourselves, who will? So this was one event that that forced me, or that motivated me, that I should speak for myself. I should uh, uplift up. I should work for the upliftment of myself and my people. So I believe in a politics that lies not in the power corridors, but that believes in giving enough space to dissent, to creating spaces which are shrinking, and the politics that starts in streets, in classrooms, and for survival. So yeah. For sure, I think it's very important to also realize that that is where politics starts in the Yes. streets and classrooms. Exactly. कॉलेज में बहुत सारे मसले होंगे आपके कुछ मसलों के बारे में आप बता सकते हैं हमें यस, काफ़ी सारे मसले हुए हैं. My journey in student politics started back in 2016. So there was this organization, Jammu and Kashmir Students Union. I was elected as its vice president back then. I was in college. Uh, so since then, I have been in various student organizations and working for the issues of students largely, and on social issues as well. But in recent times, मैं एक क्योंकि आपने बोला तो I will just quote one incident. In university days after 2019, I was in Kashmir University, which is the highest learning institute of Kashmir. And what happened is there is a library, and we had that space called 24 into 7 reading room facilities, where Wi-Fi was available 24 into 7, because outside there were no shutdowns, internet blockades as well, and all the facilities for studying, for reading, everything was available there. So students in large numbers, in hundreds, would come there in early mornings, preparing for different exams, for their semester exams, competitive exams, for every kind of exam. So that was a new thing in there, and everyone was there. But 2019 के बाद वो बंद किया गया, and so we raised the issue with the administration, but unfortunately they didn't listen. So हमने क्या किया उसमें, हम कुछ लॉ स्टूडेंट्स थे, हमने उसमें पहल की, मीडिया को इन्वॉल्व किया, एडमिनिस्ट्रेशन को रीच आउट किया. तो अलग अलग तरीके से हमें कहा जाता था, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कंस्ट्रक्शन चल रही है,
कोई दूसरा इशू चल रहा है। सो फिर कोविड का सीज़न आया तो कहना ये है कि स्टूडेंट्स उसमें सफ़र हो रहे हैं और लार्ज पार्ट बॉडी जो है स्टूडेंट्स की वो सफ़र, क्योंकि कश्मीर में सर्दियाँ तो बड़ी ख़तरनाक होती है, तो अंदर जो हीटिंग सिस्टम वगैरह जो दैट वाज बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स है, और एक आइडियल स्पेस थी रीडिंग के लिए, तो दैट वाज श्रिंकिंग बट क्लोज्ड एज वेल आर्बिटरली। सो उसके लिए रेज वॉइस की, मीडिया को इन्वॉल्व किया, जो पावर कॉरिडोर्स में लोग हैं उनको इन्वॉल्व किया, एंड फाइनली इट वाज अ बिग सक्सेस एंड बट अ लॉन्ग स्ट्रगल। Yeah. सो इट इज़, आज जो देखते हैं वहाँ पे लोग पढ़ते हैं बड़े अच्छे से, इट वाज वन सच इवेंट। And you know, in the past few years in our country, we have seen a lot of students coming out to protest, whether it is in Jamia, whether it is in JNU. Yes. और बहुत सवाल अक्सर लोगों का ये आता है कि स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई करनी चाहिए, प्रोटेस्ट करने की क्या ज़रूरत है, आप पढ़ाई करो, आप पढ़ाई करने के लिए आए हो। बट दिस एक्चुअली हाईलाइट्स कि क्यों स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत है, Yes. क्यों स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स में आने की ज़रूरत Yes. है। I believe that universities are not only for making, academicians, researchers, doctors and intellectuals and जो जितने भी सोसाइटी को जितने भी लोग चाहिए होते हैं for the better welfare of the society, but I believe कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ को politicians भी प्रोड्यूस करने चाहिए, but unfortunately what we are seeing कि जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स या स्टूडेंट बॉडीज़ की जो स्पेसेस है विद इन यूनिवर्सिटी एंड पर्टिकुलरली इन कश्मीर, इट इज़ श्रिंकिंग, एंड बट आई माइट से इट डज नॉट एग्जिस्ट इन द कैंपसेस इन द कॉलेजेस। सो हमें इस पे देखना चाहिए कि जहाँ हमारी सोसाइटी में जो लर्निंग इंस्टीट्यूट्स है वो कभी कभार क्या होता है, एक्स्ट्रा में लॉयर्स इतने ही चाहिए उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करके देते हैं, डॉक्टर्स इतने चाहिए उससे ज़्यादा भी प्रोड्यूस करके देते हैं, टीचर्स इतने ही चाहिए तो इससे ज़्यादा भी प्रोड्यूस करके देते हैं। बट जो एक पॉलिटिशियन होता है, एक प्रिंसिपल पॉलिटिशियन जो है, जो ज़रूरी है सोसाइटी के लिए, जो इन सब को जो है ढांचे में फिर रखता है, एक वेलफेयर के लिए, सभी के वेलफेयर के लिए फिर इम्पॉर्टेंट होता है। तो आपका डॉक्टर वो एक चीज़ को जो है वो करता है, बैलेंस करता है या उसको अपलिफ्ट करता है, लेकिन एक पॉलिटिशियन जब होगा तो ही विल कंसिडर ऑल द फील्ड्स ऑफ द सोसाइटी। बट इस पे हम बात ही नहीं करते, हमें एनकरेज करना चाहिए कि स्टूडेंट्स को स्पेस देनी चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ को प्लेटफॉर्म देना चाहिए कि हम पॉलिटिशियंस यहाँ से उभरने चाहिए, लेकिन हम कहीं और से देख रहे हैं कि वही जो है परंपरा चल रही है कि दादा परदादा जो है आगे वो चल रहा है। तो दिस इज़ व्हाई आई बिलीव कि देयर शुड बी स्पेस एंड वी शुड एनकरेज स्टूडेंट्स। Definitely. Yes. It's very important that young people and more people come into politics, they become political, they participate in the democracy, in the functioning of democracy. Yes. You use this word which is very interesting to me, principal politician. Yeah, exactly. So we have an idea of a politician, right? हम सब ने फिल्मों में, कभी रियल लाइफ में भी पॉलिटिशियंस देखे हैं, एक सर्टेन तरीके के पॉलिटिशियंस देखे हैं। तो हाउ इज द जर्नी फ्रॉम दैट टू प्रिंसिपल पॉलिटिक्स? Well, as I mentioned, I believe in a politics that lies not in the politics that is not about the power. It's not about power. That it not always lies in the power corridors. Politics for me is about presence. It is about creating, alternatives where there are none, democratic alternatives. Yes. And it's about that moral reimagination. I believe कि politics should be courageous. इसके भी कुछ नियम होने चाहिए। तो यहाँ पे भी जैसे हर किसी क्षेत्र में हमें जो है, हर किसी फील्ड में उसके अपने इथिक्स होते हैं। तो कोई लॉयर बनता है तो उसको लीगल इथिक्स समझाए जाते हैं, मेडिकल इथिक्स समझाए जाते हैं। तो हर किसी फील्ड में इथिक्स होने चाहिए। बट इन पॉलिटिक्स वी से देयर आर नो इथिक्स, बट देयर शुड बी, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑफ सोसाइटी, ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। So I believe कि values, morals, these should be very much intact to a politician. He should listen to these things and should reflect upon them.
तो मेरी जर्नी जो है इसमें मैं ISD का भी जो है इनको भी क्रेडिट देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे इंट्रोड्यूस जो प्रिंसिपल, क्योंकि हमारे लिए तो पॉलिटिक्स वही जो हम देखते थे टीवी में, बॉलीवुड मूवीज़ में, तो हमारे लिए तो वही थी। लेकिन जब व्हेन आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू ISD, सो कि मुझे थोड़ा सा ये हुआ कि I should change that path, that journey, तो to come to there, तो यहाँ पे वो प्रिंसिपल पॉलिटिक्स समझाया गया कि कैसा है क्या है। सो यस। तो गाजी, अभी आप JNK स्टूडेंट्स एसोसिएशन के स्टेट प्रेसिडेंट हैं. व्हाट इज JNK स्टूडेंट एसोसिएशन डज इन अ पॉलिटिकल सिनेरियो? Yes. What does a student association do? Yes. What kind of things does a student association talks about, or why is a student association needed? Yes. So Jammu Kashmir Students Association, it is actually the largest students body of Kashmir, of Jammu and Kashmir. So it not only works in Kashmir, but also in all the states of India outside Kashmir as well. Even we have some branch, outside India as well. So what we do is we take the issues of students. We want to act as a bridge between the power corridors where the solutions actually lie, between the administration and the students. So for example, recently in Iran or in Ukraine, the crisis happened, and hundreds of students from Kashmir were studying there. So what we did, we coordinated with the ministries, with different ministries, including the Foreign Affairs Ministry, and seek their help, and sometimes we give the details to the administration कि इतने students वहाँ पे पढ़ रहे हैं, so उनको जो है वापस घर आने में उनको फैसिलिटेट करना, या दूसरे कई इश्यूज़ होते हैं, छोटे छोटे इश्यूज जैसे स्टूडेंट्स के होते हैं, हॉस्टल का इशू है, फ़ी हाइक का इशू है, वो नॉर्मल इश्यूज़ होते हैं, उनको राइज़ करते हैं, उन पे आवाज़ उठाते हैं. नॉट ओनली दैट, एंड सोशल इश्यूज़ एज वेल. जैसे फॉर एग्जांपल, एक तो स्टूडेंट्स इश्यूज़ पे अभी कश्मीर में कुछ हालात ऐसे वैसे हो जाते हैं, तो लॉट ऑफ कश्मीरी स्टूडेंट्स फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स स्टडीइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ एंड डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ विद इन इंडिया. तो वो फिर हम उन स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं कि स्टूडेंट्स शुड नॉट फेस दोज प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर. तो काफ़ी सारे मसले होते हैं स्टूडेंट्स, कश्मीरी स्टूडेंट्स के ज़्यादातर होते हैं, तो उसको कोऑर्डिनेट करता है. एंड दूसरा आपने पूछा कि पॉलिटिकल रेलेवेंस क्या है, तो आई बिलीव, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि इट इज़ वेरी नेसेसरी इन आवर सोसाइटी, क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा कि हम पॉलिटिशियंस प्रोड्यूस ही नहीं करते, क्योंकि प्लेटफॉर्म ही नहीं है. सो जब आप कॉलेज में इसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, जब आप स्टूडेंट्स बॉडीज़ को यूनिवर्सिटीज़ में काम नहीं करने देते हैं, सो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि अच्छे पॉलिटिशियंस आ जाएंगे. तो जब तक अच्छे पॉलिटिशियंस नहीं आएंगे, तब तक जो है किसी भी सोसाइटी का वेलफेयर या अपलिफ्टमेंट अच्छा नहीं होगा. लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है, हमें वो ग्राउंड प्रोड्यूस करना है. तो स्टूडेंट्स बॉडीज़, जो भी स्टूडेंट्स एसोसिएशंस हैं कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में, स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स एक मैंडेटरी चैप्टर होना चाहिए. I think this is the way to build an alternative kind of politics. Exactly. This is a way for Yes. moral reimagination, where newer voices, newer thoughts come into politics, ताकि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, जो कि कश्मीर में तो काफ़ी ज़्यादा है, Yes. डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, या वही लोग जो पॉलिटिक्स पिछले 40 साल से चला रहे हैं, उनके अलावा नई आवाज़ें हमें सुनाई दें. बट आई एम श्योर स्टूडेंट पॉलिटिक्स में अभी आप हैं, तो नेशनल पॉलिटिक्स में भी जाने की तैयारी होगी. सो व्हाट डज दैट रोड लुक लाइक फ्रॉम स्टूडेंट पॉलिटिक्स टू नेशनल पॉलिटिक्स? आई बिलीव कि नेशनल पॉलिटिक्स से पहले जो है वो रीजनल पॉलिटिक्स है. एंड सफ़र जो है वो मुश्किल है, वो कठिन है. इट्स नॉट ईजी, द रोड इज़ नॉट ईजी, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट. बट जुनून है वो करने की, तो वेल इट लुक्स डिफरेंट, बट ऑप्टिमिस्टिक है. करेज के साथ जा रहे हैं, वो फाइट तो करना है, स्ट्रगल तो करना है, बट वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक.
तो जुनून कहाँ से लाते हैं आप गाजी? यस। लोगों के मसले हल करने हैं, एक बेहतर पॉलिटिक्स बनानी है, ये तो एम्स है। बट ये जो अंदर जुनून है, जिसने शायद आपको 15-16 साल की उम्र में पॉलिटिक्स की तरफ धकेला, वो जुनून कहाँ से, किन चीज़ों से, किन लोगों से आती है? वो जुनून, वो मोटिवेशन जो है वो सड़कों से आता है, वो क्लासरूम से आता है, वो अपने लोगों के बीच में, अपने साथियों के बीच में रहते हुए, उन क्लासरूम्स में, उन डेस्क्स पे, उन जो है मैट्स पे बैठ के और अपने आसपास अपने नेबरहुड में ऑब्जर्व करके वो जुनून आता है कि नहीं, अपने लिए तो बोलना है, अपने लोगों के लिए बोलना है, तो कुछ तो करना है। तो मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा तो कहाँ जुनून ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। बट कभी कभी इतनी, आपने बताया आप 8 साल से पॉलिटिक्स में हैं, 8-10 साल से पॉलिटिक्स में हैं। मुझे नहीं पता 8-10 साल में चीज़ें कितनी बेहतर हुई हैं, कितनी ख़राब हुई हैं। कभी कभी देख के हेल्पलेसनेस नहीं होती? कभी कभी देख के वो जुनून थोड़ा शायद ठंडा नहीं पड़ जाता? वेल, मैं ये थोड़ा सा क्लैरिफाई करता हूँ उसमें, कि मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हूँ अभी, तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, ऐसे मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में नहीं हूँ। सो यस, हेल्पलेसनेस कभी नाउम्मीदी लगती है कि रोड तो काफ़ी मुश्किल है, लग रहा है लक्ष्य या एम जो है, जो टारगेट है, उस तक पहुँचने में तो सदियाँ बीत जाएगी, अभी तो कुछ और कर लेते हैं फिर। बट जो ऑब्जेक्टिव है, मुझे लगता है जो लक्ष्य है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो अजीम है, वो बहुत बड़ा है। जी। उसके लिए कोई भी सेक्रीफाइस जो है दे सकते हैं, कोई भी कुर्बानी जो है दी जा सकती है। गाजी, एज अ यंग पॉलिटिशियन, आपने बताया कि कश्मीर की पॉलिटिक्स काफ़ी डायनास्टिक है, विच इज़ वाई वी नीड यंग पॉलिटिशियंस. व्हाट डज अ यंग पॉलिटिशियन सी, और what changes do a young politician see in the politics that probably people from the previous generation or people who have been in politics for the past 40 years don't see? यस, सो आई बिलीव कि जो यंग पॉलिटिशियंस होते हैं उनकी नज़र जो है इन दिस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड उन चीज़ों पे जाती है जिन पे शायद जो ट्रेडिशनल ओल्ड पॉलिटिशियंस है उन पे, उन चीज़ों पे नज़र नहीं जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इन माय पार्ट ऑफ द वर्ल्ड मैं कहूँगा कि हमारे वहाँ पे एक एग्रीकल्चर सेक्टर एक बड़ा इम्पोर्टेंट सेक्टर है हमारी स्टेट की जीडीपी में, और मैक्सिमम रोल प्ले करता है। सो इन माय डिस्ट्रिक्ट एज वेल, जो पॉपुलेशन इज़ होली डिपेंडेंट ऑन एप्पल प्रोडक्शन। तो क्या हुआ है कि कई फ्रॉम 2000 से या 90s से जो है वो वही एप्पल प्रोडक्शन जिस तरीके से उगाई जाती है, की जाती है, तो वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स वो उसमें वो नहीं हो रहे हैं, या पेस्टिसाइड्स का कंट्रोल वगैरह जो है, किस तरह के से फेक पेस्टिसाइड्स फॉर एग्जांपल आते हैं। तो जो यंग पॉलिटिशियंस हैं उनकी नज़र इन चीज़ों पे जाती है। ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन क्या करता है, वो देखेगा कि किसका ट्रांसफार्मर बिजली का नहीं है, सड़क कहाँ पे नहीं है, पानी है सभी का, वो इनमें तो सेटिस्फाई हो जाता है कि ये 4-5 चीज़ें हैं तो बस। लेकिन यंग पॉलिटिशियन जो है उसको टेक्नोलॉजी पे नज़र होती है, उसकी नज़र बहुत दूर तक होती है, वो देखता है कि दुनिया में बाकी आसपास क्या होता है, तो वो ही रिफ्लेक्ट्स ऑन देम, और वो ही वांट्स टू सी कि वो चीज़ अगर कहीं पे बन रही है वो मेरे स्टेट में या मेरे गांव में, मेरे जो एरिया है उसमें होनी चाहिए। स्टैटिस्टिक्स पे जैसे फॉर एग्जांपल नज़र रहती है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहाँ पहुँचा है, इस पे कितना काम करना चाहिए, स्कीम्स वगैरह के गवर्नमेंट को पिच करना है कि मेरे एरिया में ये प्रॉब्लम है, उसके पास ये सोल्यूशन है। तो डिजिटल टूल्स है कि ये कैसे जो है हम यूज़ कर सकते हैं, ऑब्वियसली फॉर द अपलिफ्टमेंट, फॉर द बेटरमेंट, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो मुझे लगता है ये टेक्निकल चीज़ें जो है इन पे जो है उनकी नज़र नहीं जाती है एक यंग पॉलिटिशियन को, बल्कि वो स्टार्ट ही इन्हीं चीज़ों से करता है। सो यस, दीज थिंग्स जो है वो मैटर करते हैं, और यंग पॉलिटिशियंस की हमेशा उन पे नज़र रहती है। एंड द फनी थिंग इज दिस कि
We have such a huge young population. Yes. And जो चीज़ें आपने बोली, sex ratio, employment, HDI, these are the things that affect young people the most for long term. Yes. Even climate, for Exactly, example. yes. क्योंकि इतना precarious ecological zone है हाँ. कश्मीर. तो मतलब बिकॉज एक और इन चीज़ों पे कभी मैंने इलेक्शंस में अक्सर बातें होते हुए नहीं देखी हैं. मोस्ट पॉलिटिशियंस डू नॉट टॉक अबाउट इट. आई थिंक थोड़ा पॉलिटिकल नैरेटिव का भी एक रीइमेजिनेशन होगा अगर यंग लोग और पॉलिटिक्स में आएंगे. सो like how do you see the politics of Kashmir in the next 5 to 10 years? कैसे बदलता हुआ, कैसे रीइमेजिन होता हुआ देखना चाहते हैं आप कश्मीर की पॉलिटिक्स को? वेल मैं तो जब से मैं जो थोड़ा सा स्टूडेंट पॉलिटिक्स वगैरह जो है देखी है, तब से तो रीइमेजिन ही कर रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए, ये होनी चाहिए, थोड़ी प्रिंसिपल पॉलिटिक्स होनी चाहिए. तो आई रीइमेजिन इट एज इट शुड बी करेजियस. अपकमिंग डिकेड्स में, अपकमिंग ईयर्स में पॉलिटिक्स शुड बी करेजियस. इट शुड नॉट बी ऑल अबाउट पावर कि मेरे पास तो पावर आया है. इट शुड नॉट ये सीमित और लिमिटेड नहीं रहना चाहिए टू लीडिंग द पीपल, बट टू लिसनिंग टू देम एज वेल. तो पॉलिटिक्स शुड नॉट बी अबाउट टू लीड एंड रूल. It should be about to listen as well, to listen to the silences, to listen to the people. तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है. और मुझे लगता है कि कश्मीर की पॉलिटिक्स को मैं इस तरीके से इमेजिन करता कि यंग पॉलिटिशियंस जो है वो सामने आ जाए, क्योंकि वो डायनास्टिक रूलर्स चल रहे हैं अपने हिसाब से. तो उनका अपना चल रहा है, अपना लाइन ऑफ पॉलिटिक्स उनकी है, वो तो कभी टिल्ट नहीं होगी. दे हैव दिस स्ट्रक्चर एंड दे नो कि पाथ बनी हुई है कई दिहाइयों पहले. दे वर्क ऑन दैट. उनकी वही लाइन है, वही स्ट्रैटेजी है, वो कुछ बदलने वाला नहीं है. तो आई बिलीव कि नए लोगों को सामने आना चाहिए. और लेकिन मसला वहीं पर अटक जाता है ना. मसला वही है कि हम यंग पॉलिटिशियंस को मोटिवेट ही नहीं कर पाते. यंग इंडिविजुअल्स को जो है हम उनके लिए वो प्लेटफॉर्म ही प्रोवाइड नहीं करते हैं. तो ये चीज़ें हैं. आई जस्ट गिव यू वन एग्जांपल. जैसे मैंने अभी बोला कि यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में स्टूडेंट एक्टिविज़म ही नहीं है, तो कोई रजिस्टर्ड बॉडी ही नहीं है. एक आयरनी इज़ दैट कि इन जम्मू एंड कश्मीर वी हैव फाइल्ड एन RTI some 2-3-4 months back, and about is student bodies, are they banned, or student politics, is it banned in Jammu and Kashmir? And we got the answer was, the reply was that no, it's not banned in Kashmir. Officially to ban nahi hai. There was a verbal order from Kashmir University, vice chancellor Proctor back in 2008 कि इसको डिसमेंटल किया. वहाँ पे एक अपनी स्टूडेंट्स बॉडी थी. सो इट इज़ नॉट ऑफिशियली बैंड, बट इट डजंट एग्जिस्ट एनीवेयर, क्योंकि स्पेस नहीं मिल रहा है. सो मेरा ये मानना है कि वहाँ से आप ग्रूम कर सकते हो. वहाँ पे जब आप प्लेटफॉर्म नहीं दे रहे हो तो आप क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हो. बट आई स्टिल बिलीव, आई स्टिल हैव होप दैट politicians, young politicians have the capacity and the capability to change the future of any nation. Definitely. So this is what we as young people can do in anywhere, in any part of the world. We can change the whole spectrum of our nation, of our society, wherever we live. So I am hopeful that someday, maybe it will take time, but young people will come, they will form a stage, they will give space, they will reflect, they will read, they will reflect, and they will introspect, and they will make this commitment that yes, we are here to change, and to change it for all, at least. And also I think we have grown up in a social, like our generation has grown up in a social media age. Yes. With Twitter, Instagram, Facebook. All kinds of social media platforms. So I'm sure, and politics has also changed with it. So how is it being a politician in the social media age?
वेल मेरा ये मानना है कि आज के दौर में, इन टुडेज़ वर्ल्ड, विथआउट सोशल मीडिया आपके लिए काफ़ी सारी जो है आप सोच ही नहीं सकते अपनी पॉलिटिक्स की, क्योंकि सोशल मीडिया इज़ एवरीवेयर। जहाँ पे आप नहीं पहुँच पाते हो, जहाँ पे आप नहीं है फिज़िकली प्रेजेंट, आपका सोशल मीडिया वहाँ पे है। सो सोशल मीडिया इज़ दैट प्लेटफॉर्म विच ना एक सेंस देता है, विच मेक्स योर प्रेजेंस एवरीवेयर पॉसिबल। तो वो चीज़ है। एंड मुझे लगता है कि आजकल के वो तो पॉलिटिक्स भी थोड़ी सी चेंज हुई है। वी हायर लॉट ऑफ कंसल्टेंट्स एंड ऑल दैट। तो सोशल मीडिया पे प्रचार होती है, कैंपेनिंग होती है, नैरेटिव बिल्डिंग होती है पूरी की पूरी। तो दैट नैरेटिव सेटिंग वगैरह जो है वो सारा कुछ जो है सोशल मीडिया से होता है। आपकी ब्रांडिंग वो तो सारा सोशल मीडिया से होता है। And I have a personal experience as well. In recently held Jammu Kashmir elections, I have campaigned for an independent candidate. I was rather a campaign lead for the candidate, organizing the entire political campaign. So we use social media. तो एक नैरेटिव बिल्डिंग हमने पूरा सोशल मीडिया से की है। तो इट हेल्प्ड। एंड तो इस उसमें हमें बहुत अच्छा जो है रिस्पॉन्ड भी मिला है। इट हेल्प्ड। तो यस, सोशल मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पिलर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पॉलिटिक्स, इन इलेक्शन कैंपेनिंग, in everything, in day-to-day life. Yeah, and I think it impacts the political discourse also. Exactly, yes. There, I think voice is now decentralized, where more people can speak up, and उसके थोड़े negative effects भी हैं. There's a lot of fake news, misinformation, trolling, and all of those things. Ghazi, would you like to tell me about a little bit more about the recent J&K elections and your experience with it? सो रिसेंट इन जम्मू एंड कश्मीर जो इलेक्शंस हुए, थोड़े से डिफरेंट इलेक्शंस, क्योंकि पहले स्टेट इलेक्शंस होते थे, अब तो स्टेट नहीं रहा, अब यूटी है। तो यूटी में पहले इलेक्शंस हुए हैं आई गेस फ्रॉम 2014 के बाद जो है, 13 के बाद पहले इलेक्शंस हुए हैं। तो इस बार एक चीज़ जो पहले नहीं हुआ करती थी, लॉट ऑफ पीपल केम फॉरवर्ड। तो उन्होंने वोट डाला जो पहले नहीं डालते थे, तो उन्होंने भी वोट डाला, शायद इस उम्मीद से कि कुछ बदलाव आएगा। बट अभी तो 8-9 महीने हो गए हैं, वहाँ सरकार भी बनी है, बट अनफॉर्चुनेटली दे कुडंट डिलीवर। तो उनको भी ज़्यादा वो नहीं है कि हम उनको कहेंगे कि आपने नहीं किया, कि जो उनने मैनिफेस्टो में या जो लोगों की उन पे एक्सपेक्टेशन थी कि उनको इतना बड़ा जो है मैंडेट दिया था लोगों ने। तो इट्स बिकॉज कि यूटी में उनको जो है पावर्स बहुत कम है, लिमिटेड मिलते हैं। तो सारे पावर्स एक जगह पे है, सो दे कुडंट डू वेल। तो ये चीज़ है। आप लिखते हैं, आप कुछ सुनाना चाहेंगे? 2 लाइनें हमें। मैं इंग्लिश में यूजुअली ज़्यादा लिखता हूँ, राइट इन इंग्लिश, सो आई कैन, मैं कुछ 1-2 लाइन्स पढ़ता हूँ आपके लिए। वेल, ये एक बहुत बड़ी पोएम है, सो कुछ ये स्टैंज़ा सुनाता हूँ आपको बीच में से। माय लेडी, डोंट फील गिल्टी फॉर द वर्ल्ड्स क्रुएलिटी। आई हैव नथिंग टू ऑफर बट लव, एंड यू एवरीथिंग बट लव। योर विश इज़ माई वॉर टू विन, योर गिल्ट माई ग्रीफ टू conquer. I breathe in your name, and my soul dances at its whisper. Remember, we grew up in different realms. I was born to struggle and bleed, you to revel and dream. I carried the caravan of miseries, while you held the lamp of dreams. I played on barren streets, you strolled through lush gardens. Your dreams reached the stars, mine clung to the shadow of your smile. Your world hummed with songs of joy, mine reverberated with screams of war. You, a princess cradled by care, and I, a prince without a crown, a star without its guiding light. We are not the same, yet we are two halves of a restless whole, colliding in the chaos of love. My love, let your smile be my sacred syllabus, and your radiance my relentless research.
Your dimple, my dissertation. Your touch, my timeless thesis. Your bangles, my books of devotion. Your dress, my canvas of dreams. Let your laughter echo in my library, and your glow ignite my sanctuary of solitude. To praise you is my only prayer. To remember you, my sole religion. To love you is my eternal profession, an art I craft with every breath. ये लंबी पोएम है, आप तो सुनते ही जाएंगे, तो Thank इसमें you. टाइम Thank लग you जाएगा. so much. Thank It you. is so beautiful. You write so beautifully. Thank you. How and where do you find the time Hmm. to reflect and write? Yes. मतलब just with your daily life, with your academics, with your politics, how do you find the time? वेल थोड़ा मुश्किल होता है कभी. बीच बीच में टाइम अगर मिल जाता है, जैसे एग्ज़ाम्स हो गए, थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए टाइम मिल गया है, तो रिलैक्स हो जाते हैं, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करते हैं. कुछ अंदर जो इन दिनों में कलेक्ट होता है, वो थोड़ा सा उसको एक शेप देते हैं, वो बाहर कैसे आ जाएगा, थोड़ा लाइटर फील करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं थोड़ा सा. तो जैसे ये कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है, तो कभी एग्ज़ाम जैसे फॉर एग्जांपल बीच में ख़त्म हुए तो थोड़ा सा टाइम मिल जाता है रिलैक्स होने का, तो उसी में रिफ्लेक्ट करते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, थोड़ा सा टाइम निकाल के थोड़ा लिखते हैं, किताबें पढ़ते हैं. एंड एक चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ कि डी के जो हमारा ये प्रोग्राम चल रहा था डेमोक्रेसी एक्सप्रेस ISD की तरफ से ही, वहाँ पे एक इनर वर्क पे तो ये वर्कशॉप्स होते थे, सेशंस होते थे पर्टिकुलर कि आपके जो थॉट्स होते हैं, इनर थॉट्स, उनको आप कैसे डायरेक्शन दे सकते हो. तो उसमें उसके बाद काफ़ी हेल्प मिली है जी. तो वो उसके बाद वो डायरेक्शन मिलना, अपने थॉट्स को डायरेक्शन देना किस तरह से, तो उसने काफ़ी हेल्प की. तो हाँ, वो मिल जाता है, कभी टाइम मिल जाता है तो फिर उसी में लिख लेते हैं. थोड़ा सा आज लिखे, थोड़ा सा 4 दिन बाद लिखे, थोड़ा सा फिर याद आया कभी तो बैठ के लिखे, तो ऐसा हो जाता है. Very nice. So, as a young politician, if you could say one thing to people watching us, young people watching us, to inspire them to join politics, what would that be? वेल मैं जैसे बोला हूँ कि इंस्पिरेशन आपको कहाँ मिलती है. इंस्पिरेशन किसी को देख के नहीं मिलती है आपको. तो इंस्पिरेशन मुझे लगता है आपको जहाँ पे आप रहते हैं, आपके ग्रास रूट्स में, आपके ग्राउंड में, वही वहाँ से वो जो लोग हैं, जो तुम आप खुद हो, वो इंस्पिरेशन है. जो आपकी लोकेशन है, जो आपकी लोकेलिटी है, जहाँ से जो आपका विलेज है, जो आपका गांव है, जो आपका मकान है, जो आपका परिवार है, जो आपकी फैमिली है, जो आपका स्कूल है, जो आपका क्लासरूम है, जो आपकी आइडेंटिटी है, ये सारी चीज़ें आपको इंस्पिरेशन देते हैं. और ये आपको एक विजन और ऑब्जेक्टिव और एम देते हैं कि वाई यू शुड चूज़ पॉलिटिक्स. एंड आई बिलीव कि ना साइलेंस जो है वो इट हेल्प्स द स्टेटस को. तो कभी कभार हमें बोलना पड़ता है, और इस बोलने के लिए जो है पॉलिटिक्स इज़ द बेस्ट मीडियम एंड बेस्ट प्लेटफॉर्म. Definitely. So, yes, and my message would be this कि we should read, we should retrospect, we should reflect, and we should set standards for politics. Definitely. हमें ये standards पहले ही जो है चुनने पड़ेंगे कि मैं कौन सी पॉलिटिक्स ये मैं जाना चाहता हूँ, प्रिंसिपल पॉलिटिक्स या वही ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स. एंड माई मैसेज वुड बी कि ऑलवेज चूज़ वैल्यूज़, ऑलवेज चूज़ प्रिंसिपल्स, ऑलवेज चूज़ प्रिंसिपल पॉलिटिक्स. Yes. Thank you so much, Thank Ghazi. you. Thank you for spending Thank time you. with us. It Thank was you. great talking to Thank you. you for having me.